بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز دوستو، یوٹیوب چینل مائی سیکرٹ ڈائری اردو میں خوش آمدید۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جذر کہاں سے کہاں تک گنتی کو آپ دے سکتے ہیں اور کس جذر کے ساتھ کون سے اعداد شو ہوتے ہیں اور ان کا کرائٹیریا آخر کتنا ہوتا ہے۔ اس معلومات کے لیے یہ مختصر سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ احباب جذر کے متعلق کچھ ضروری چیزوں سے آگاہی حاصل کر لیں۔ پہلے آپ کی خدمت میں کئی طرح کے علوم آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، جن میں سے خاص طور پر نمبر بنانے کا طریقہ، مختلف طریقے اور اسی طرح مختلف گیمز کے لیے مختلف روٹینیں اور فارمولے آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، اور علم الجفر کے متعلق اور کچھ روحانیت کے متعلق بھی واضح ڈسکشن یہاں پہ اس چینل پر موجود ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف جذر کے متعلق ہی بات کریں گے۔ عزیز دوستو، جذر ہمیشہ 10 سے چلتی ہے اور 10 سے شروع ہو کر عزیز دوستو 99 تک جذر کا کرائٹیریا ہے۔ 2 عدد ایسے ہیں جن کی اپنی کوئی جذر نہیں ہوتی، بلکہ 3 عدد ایسے ہیں جن کی اپنی کوئی جذر نہیں ہوتی، یعنی 1 اور 2 کے عدد کی اپنی کوئی جذر نہیں ہوتی۔ 1 اور 2 ان دونوں اعداد کی کوئی جذر نہیں ہوتی ہے، یہ دوسرے اعداد کی ہیلپنگ جذر کے ساتھ ہی ہمیشہ شو ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نکلتے ہیں، یعنی اس کے لیے یکا ہمیشہ اس وقت آپ کے سامنے شو ہوگا جب 6 کی جذر آپ دے رہے ہوں گے۔ اسی طرح 7 کی جذر دے رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ 2 جو ہے یہ آپ کو شو ہوگا، ادروائز 2 کی اپنی جذر کوئی نہیں ہوتی۔ جذر ہمیشہ دوستو 3 سے شروع ہوتی ہے اور 3 سے لے کر یہ 99 پورے 9 تک چلی جاتی ہے، یعنی 1 2 چھوڑ کر اور پیچھے 3 4 5 6 7 8 اور 9 یہاں تک جذر جاتی ہے۔ 0 جو ہے یہ بھی ہمیشہ ہیلپنگ عدد ہوتا ہے اور یہ 5 کے ساتھ ہمیشہ شو ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اعداد جو ہیں عزیز دوستو، ان کی اپنی ذاتی جذر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو اعداد ہیں ان کی اپنی جذر ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 3 اور اسی طرح سے 4 اور 5 اور 6 اور 7 8 9 ان کی اپنی جذریں ہوتی ہیں عزیز دوستو۔ اور یہ کس طرح سے چلے گی جذر، میں ابھی آپ کے ساتھ گنتی کے اعتبار سے اس کو شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے یہ جذریں آگے چلتی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کیلکولیٹر پر اس طرح سے فرض کر لیں، آپ کیلکولیٹر پر 10 لکھتے ہیں اور جذر کا بٹن دبائیں تو پہلا عدد آپ کے سامنے 3 کا یہ عدد شو ہو رہا ہے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 کا عدد، اور یہی اس کی جذر ہوتی ہے۔ یعنی 10 سے لے کر اگر آپ 15 تک چلیں تو اسی طرح 10 کے بعد آپ دیکھیں نا 11 پریس کریں اور یہاں سے جذر کا بٹن دبائیں تو 3 آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ 15 اگر پریس کریں تو بھی یہ 3 ہی آ رہا ہے۔ تو اگر آپ 16 دبائیں گے تو یہاں پہ اب 4 ہو جائے گا، 3 نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 سے لے کر 15 تک جو جذر نکلے گی وہ ہمیشہ 3 کی جذر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد 16 کی باری ہے، یعنی 16 سے 4 کی جذر شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں 16 لے کر جذر کا بٹن دبایا تو عزیزو یہ 4 کا فگر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح سے 24 کا فگر دبائیں گے اور جذر کا بٹن دبائیں تو بھی آپ کے سامنے پہلا عدد 4 ہی شو ہو رہا ہے اور یہی اس کی جذر ہوگی، یعنی 4۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 16 سے لے کر 24 تک، یعنی 16 سے لے کر 24 تک عزیز دوستو جذر جو ہوتی ہے وہ 4 کی جذر ہوتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد 24 کے بعد 5 کی باری آ جاتی ہے تو 25 سے یہ شروع ہوگی، یعنی 25 کو اگر پریس کر کے یہاں پہ جذر کا بٹن دبائیں عزیزو تو پہلا عدد یہ 5 نکل رہا ہے، ایک ہی عدد 5 نکل رہا ہے، تو 5 کی جذر 25 سے شروع ہوگی اور یہ جائے گی 35 تک،
यानी 25 के बाद अगर आप यहाँ पे 30 लिख के जज़र बटन दबाएं तो भी आपके पास 5 ही निकलेगा। इसी तरह से अगर आप 33 दबाएं तो भी 5 ही आएगा, 34 कर लें तो भी 5 ही आएगा, इसी तरह 35 करें तो भी आपके सामने अजीज दोस्तों 5 ही जज़र शो होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला अदद जो इशारिया से पहले शो होगा यही जज़र होगी। तो यहाँ से यानी कि आप 24 से 25 से लेकर 35 तक अगर आपके पास अदाद मौजूद हों तो अजीज़ों उनकी जज़र 5 हो, ये आप समझ लें। और फिर इसी तरह से 35 के बाद 6 का नंबर आ जाता है अजीज़ों, और 6 के लिए आप जज़र देंगे 36 से शुरू होगी इस तरह से, यानी 36 अगर लेके कैलकुलेटर पर जज़र का बटन प्रेस करें तो आपके सामने 6 का नंबर शो होगा। तो 6 की जज़र जो है ये 36 से शुरू होकर आगे चलते चलते ये 48 तक चली जाएगी। यानी अगर आप 40 लिखें जज़र का बटन दबाएं तो भी 6 ही आएगा। इसी तरह अगर आप 45 लिखकर जज़र का बटन दबाएं तो भी 6 ही आएगा। इसी तरह 47 लिख लें 47 तो भी 6 ही आएगा। 48 कर लें तो भी अजीज़ों ये 6 का अदद ही आपके सामने शो हो रहा है, पहला अदद, ये देख लें। तो इसका मतलब ये होगा अजीज़ों के 36 से लेकर 48 तक 6 की जज़र है, यानी 36 से शुरू होकर 48 तक 6 की जज़र होगी। यानी गिनती में जब भी आप फर्ज कर लें आप कोड लगा रहे हैं ना, जैसा कि आप कोड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोड लगाते हैं इस तरह से, मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें ये एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 35/30 कर लें। अगर आप इस तरफ से जज़र दे रहे हैं तो ये तय हो गई ना बात कि ये अजीज दोस्तों 50 की जज़र होगी, और इस तरफ से अगर आप दें तो ये 33, तो 33 की अगर आप जज़र दें तो 33 किस हिस्से में आ रहा है, यानी 25 से 35 के दरमियान 33 आ रहा है, इट्स मीन के 33 की जज़र 5 होगी। अगर इसको 38 कर लें तो 38 इस हिस्से के दरमियान आ रहा है, 36, 37 और 38, तो इसका मतलब है 38 अगर हो जाए तो 38 6 की जज़र होगी। तो अगर इसको 83 कर ले अजीज़ों तो ये 9 की जज़र होगी। 50 जो है ये 7 की जज़र होगी। किस तरह से, यानी अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे 48 से 49 पे आ जाएं तो 49 से लेकर मेरे दोस्तों ये चलते चलते जज़र जो है ये 62 तक, बल्कि 63 तक ये जज़र जो है ये 7 ही देगी, 63 तक, 63 तक। इस तरह से यानी 49 से लेकर 49 से लेकर ये देखें 7 का नंबर शो हो रहा है 49 के साथ। तो यहाँ से 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, इसी तरह से 60 तक चले जाएं। बेशक 60 लिख के यहाँ पे जज़र का बटन दबाएं तो भी 7 ही आ रहा है। इसी तरह अगर आप 62 लिखकर बटन दबाएं तो भी ये 7 आएगा। 63 लिखकर जज़र दबाएं तो भी 7 ही आएगा। लेकिन अगर आप 64 लिखकर बटन दबाएंगे तो अब आपके सामने 8 का नंबर शो होगा। अब 7 ख़त्म हो गया। तो इस तरह से अजीज़ दोस्तों 7 की जो जज़रें हैं वो 49 से शुरू होकर 49 से शुरू होकर 63 तक चलती हैं। तो 8 के लिए यहाँ से जैसा कि आपने देखा 46 से 64 से लेकर यहाँ से जज़र शुरू होगी। यानी अगर आप कैलकुलेटर पर 64 लिखें और जज़र का बटन दबाएं तो 8 की जज़र शुरू हुई यहाँ से। अब यहाँ से शुरू होकर 8 की जज़र मेरे अजीज दोस्तों 80 तक चली जाएगी। यानी 80 का अगर आप फर्ज कर लें आप 79 का बटन प्रेस करें तो भी 8 ही आएगा। और इसी तरह से अगर आप खुद 80 का बटन दबा के यहाँ पे जज़र का बटन दबाएं कैलकुलेटर पर तो भी 8 का ही नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। तो इट्स मीन के 64 से लेकर 80 तक जज़र जो होती है अजीज दोस्तों ये होती है 8 की जज़र।
और इसके बाद फिर 81 की नंबर शुरू हो जाता है। 81 को अगर प्रेस करें तो 9 आ गया, और यहाँ से लेकर 99 तक 9 की जजर होती है। ठीक है जी, यानी 81 से लेकर 99 तक ये 9 की जजर होगी। तो इस तरह से दोस्तों ये जो गिनती है इस तरह से जजरें शो करती है। और 10 से लेकर 15 तक 3 की जजर होती है, 16 से लेकर 24 तक 4 की जजर होती है, और इसी तरह 25 से 35 तक 5, और 36 से 48 तक 6 की जजर होती है। इसी तरह 49 से 63 तक अगर जजर ली जाए तो ये 7 की जजर होगी, और इसी तरह 64 से लेकर 80 तक 8 की जजर होगी, और 81 से 99 तक 9 की जजर होगी। अब यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि किस तरह से 0, 2 या 1 का नंबर किस तरह से शो होता है। ये आप देख सकते हैं कि अगर फर्ज कर लें ये 6 की जो जजर है 36, अगर आप यहाँ पे इसको 36 प्रेस करें तो सिंगल 6 का डिजिट शो हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको 38 करें तो 6 के साथ दोस्तों दरमियान में 1 का अदद मौजूद है, और 1 हमेशा इसी तरह से यूज होता है। यानी फर्ज कर लें कि अगर आप 38 के साथ कोई जजर देते हैं तो वहां पे ये 1 का नंबर 6 के साथ ही मौजूद होगा, और यही यूज होकर फर्ज कर लें अगर नंबर में 1 आ जाता है तो ये यही 1 होगा जो कि वहां पे शो होगा। इसी तरह 37 में भी बाज़ औक़ात अजीज़ों 1 का नंबर शो हो सकता है, और इसी तरह से 39 में भी बाज़ औक़ात 1 का नंबर शो हो सकता है। तो 1 तो आएगा इस हिस्से के साथ हमेशा। जब भी आप 36 से लेकर 48 तक जजर देते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखें अगर 6 के साथ 1 का अदद शो हो रहा हो तो वो काबिल प्ले अदद होगा, उसको हरगिज़ इग्नोर ना करें। और इसी तरह से अजीज़ों 25 से लेकर 35 तक 5 की जजर है, तो ये जो 0 है ये 5 का ही घर है, इसको यहाँ पे इसके साथ रखें, और 1 को इसके साथ रख दें, और 2 को 7 के साथ रख दें इस तरह से। अब 25 की अगर आप जजर दें यहाँ पे तो ये पूरा 5 निकल रहा है दोस्तों। और इसी तरह अगर आप इसके साथ कोई और अदद मिला के जब भी आप इसको जजर देंगे तो 5 के साथ 0 का नंबर भी शो होगा, और वही 0 है जो कि किसी भी नंबर में आपके सामने शो हो जाता है, वो 5 की जजर के साथ ही आता है। और इसका क्राइटेरिया 25 से 35 तक है। यानी इस तरह से अगर आप देखें 26 लिखें, जजर का बटन दबाएं तो देख सकते हैं आपके 5 के साथ ही 0 यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से अजीज़ों अगर आप 27 लिखें और यहाँ पे बटन दबाएं, 27 में 5 0 नहीं है, 28 दबाएं तो यहाँ पे 0 नहीं है, 29 दबाएं तो यहाँ पे भी 0 नहीं है, 30 तो यहाँ पे भी नहीं है, 31 में भी नहीं है, और 32 में भी नहीं है, तो 33 में भी नहीं है, 34 में भी नहीं है, और 35 में भी 0 इस तरह से शो ज़ाते खुद नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको किसी दूसरे अदद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो फ़ौरन जो है वो शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें कि यहाँ पे जैसे ये जजर मैंने आपके साथ शेयर की है, फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से कर लेते हैं अजीज दोस्तों 56, ठीक है जी। तो अगर आप सॉरी 56 नहीं, इसको हम 2 नीचे करके 25 कर लेते हैं ताकि 25 की जजर देख लें। अजीज़ों फर्ज कर लें कि अगर आपने इस तरह से 25 की जजर देनी है और इसकी मिज़ान कर लें आप, तो 170 इसकी मिज़ान कर लें। अगर आपने 25 को जजर देनी है इस तरह से तो 25 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, और फर्ज करें 17 के साथ 25 17 लिखा, जब यहाँ पे जजर का बटन दबाएंगे अजीज़ों तो 5 के साथ ही ये 0 का अदद आप देख रहे हैं कि ये मौजूद है, और इसकी मौजूदगी ही ये साबित कर रही है कि 5 के साथ ही 0 का अदद आ सकता है। अब अगर फर्ज कर लें ये नंबर बजाय 56 होने के 06 होकर विन हो जाए तो ये हो सकता है। इसी तरह से हमेशा 06 विन होता है।
अगर 0 पहले आ रहा हो तो, अदरवाइज ये 6 इस तरह या उल्टा होकर विन होना अलग चीज़ है। ठीक हो गया जी। और इसी तरह से अजीजों आप देखें 2 की जजर 2 52 के साथ हमेशा 2 की जजर आती है। जब आप 52 का बटन दबाएंगे तो 7 के साथ 2 का अदद हमेशा इस तरह से मौजूद रहेगा। और जब कभी भी 2 का नंबर आपके सामने शो होगा अजीजों, इसी तरह से इसका नंबर ज़ाहिर होगा। फॉर एग्जांपल हमने इसको जो 25 करके देखा था, अब इसको 52 करके देखते हैं। 52 70 की जजर लगा लें तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो आपके सामने अजीजों ये 7 के साथ 2 का नंबर मौजूद है। अगर फर्ज कर लें 79 काबिल प्ले और काबिल विन नंबर है तो ये 29 भी मौजूद है। इसको आप 29 भी रखेंगे और 92 भी हो सकता है। अगर उल्टा हो जाए तो जिस तरह 97 पॉसिबल है, इसी तरह 92 भी पॉसिबल है। तो ये था जजरों के मुतल्लिक इंट्रोडक्शन अजीज दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव रहेगी और आपके लिए बेहतर नॉलेज साबित होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त फरमाएं दोस्तों। खुदा हाफिज़।